Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, on popular demand, I am going to take up Mathematics of Class 8, lesson number 3, Indices and Cube Root. I have already taken up classes on English, Marathi and History, and now I have started with Maths. I really hope that these videos are proving useful to you all. And if you find my videos useful, please do like them, subscribe them and share them with your friends. So let's start. Now, indices and cube root are not the very first time that you all are doing. You have already learned them in 6th standard and 7th standard. Now, today we are going to just go a step ahead. You can see the first number which I have written is 2 raised to 5. Now, 2 raised to 5, this number is said to be the index form of a number. Yes, and 5 is the index. So, index form of the number, where 2 is the base, where you call 2 is the base and 5 as the index. Now there are certain laws which we should learn about indices, because if we want to study them, we need to learn these laws properly, or we need to understand them properly. As we all know, what are base and what are index now. So now you can see over here the first law, a raised to m into a raised to n will give you a raised to m plus n. Now you can see the base are same over here, but the indices are different, right? The bases are same, indices are different, and the two numbers are multiplied. And when in a product the base are same, you need to add the indices. That is a raised to m into a raised to n will give you a raised to m plus n, which you can see over here. The first example. Okay, same way I have given a number in the written form, 7 raised to 5 into 7 raised to 2. So base is 7, same, will give you 7 raised to 5 plus 2. That is, you are adding the index. The base is same and you are adding the index. Okay. Next is a raised to m divided by a raised to n. Now here base are same, but they are divided. So when this type of question is there, if the bases are same and there is a division in between them, you need to find the difference of the indices. That is, a raised to m divided by a raised to n will give you a raised to m minus n. That is, you need to find out the difference of the indices. That is a raised to m minus n. Okay. Same way I have written down in a example, 7 raised to 5 divided by 7 raised to 2 will give you 7 raised to 5 minus 2. Okay, bases are same, division is there, indices are different. You just need to subtract the indices. That is 7 raised to 5 and here 7 raised to 5 minus 2. Next, a into b the whole raised to m. Now this a into b, these are the two different numbers given and they are taken into bracket raised to m. So what you can do is, they are multiplied, a into b, right? They are multiplied. So if you separate them, they will become a raised to m multiplied by b raised to m, right? That is, if 7 into 5 I have taken into bracket raised to 2, that means my each of the number is having the index 2. That is 7 raised to 2 into 5 raised to 2. You can see over here, 7 raised to 2 into 5 raised to 2. Now, next one, a raised to 0 is equal to 1. If any number is raised to 0, if any number have index 0, then the answer will be always 1. Now this is very important, because why this is very important? Why? Because this kind of sum is often asked in the exams, often asked as objective, fill in the blanks or true or false, like that. So any number raised to 0, if the index is 0 of any number, your answer is 1. Always remember this thing. Then a raised to minus n, if your index is negative, to make it positive, you have to inverse the number. See, you can see over here, a raised to minus n, it is negative, is equal to what we have done, we have inversed a, right? We have written a
in a reverse order. That is, instead of a, we have written the reciprocal of a, that is 1 upon a, and when we write the reciprocal of the base, the index will get positive, will become positive, that is, it will become a raised to m. Same way I have written over here in the example, you can see this, 7 raised to minus 5 is equal to 1 upon 7 raised to 5. So just what I have done is, I have only written the reciprocal 7. what is the reciprocal? मतलब उसका उल्टा, reciprocal 7 का है 1 upon 7. तो अगर इंडेक्स अगर नेगेटिव होता है, इफ द इंडेक्स इज नेगेटिव, यू जस्ट नीड टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. ओके, नेक्स्ट, a raised to m into brackets n is equal to, now you can see over here ब्रैकेट दिया हुआ है एंड m ब्रैकेट के अंदर है और n ब्रैकेट के बाहर है. तो अगर ऐसा कुछ भी है और एक ही नंबर है, बेस है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी मल्टीप्लाई द बोथ इंडेक्स m and n, so it becomes a raised to m into n, that is a raised to mn. You can see the number over here, 7 raised to 5 brackets and 2 raised to 2, that means we multiply 5 into 2, that becomes 7 raised to 10. Now a upon b raised to m is equal to a upon m upon, so a raised to m upon b raised to m. So what you can see over here, if the two numbers are in m upon n type of integers, if they are in fraction and the whole fraction is raised to an index, that is, the whole fraction is raised to a particular number, then each of the fraction is raised to that particular numbers. Each of the fraction will have that same index. For example is given over here. You can see this example, find this example, a upon b raised to whole m, the whole raised to m will give you a raised to m upon b raised to m. And here in example I have given you 7 upon 5 raised to 3, 7 upon 5 the whole raised to 3 will give you each number separately 7 upon 3 raised to 5 upon 3. Next you have a upon b raised to minus m. Now here you can see you have a negative index, एक negative index है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, negative index होता है तो what do, we reciprocal, right, we write the reciprocal. तो a का reciprocal है 1 upon a और ये 1 upon b का reciprocal है b, तो इसको हम क्या करेंगे, a upon b को हम उल्टा लिख देंगे, that will become b upon a. So a upon b raised to minus m will become b upon a raised to m. हमारा इंडेक्स जो है पॉजिटिव कर देंगे by writing the number in a reciprocal form. That is 7 upon 5 raised to minus 2, that means it is, हम reciprocal कर देंगे, 7 upon 5 का हो जाएगा 5 upon 7 और इंडेक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, that is raised to 2. Now we have to write the answers over here using laws of indices. Write proper numbers in the following boxes. यानी अभी जो हमने लॉज ऊपर पढ़े हैं इनको यूज़ करके हमें प्रॉपर नंबर्स लिखने हैं इन इंडाइसेस में. तो चलिए शुरू करते हैं. अब हमारा सबसे पहला आया है 3 raised to 5 into 3 raised to 2. देखो बेस हमारा सेम है दोनों में 3 और इंडेक्स है हमारा एक में 5 एक में 2. तो हम क्या करेंगे, बेस हमारे सेम है ना, तो हम दोनों इंडेक्स को ऐड कर देंगे, दैट इज दिस विल बिकम 3 raised to 5 plus 2, दैट मीन्स इट विल बिकम 3 raised to 7, राइट. तो इधर बॉक्स में आएगा 7. Now you have 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9. अब डिवीजन है, द बेस इज सेम, तो हम क्या करेंगे, ये 3 raised to 7 minus 9. 7 minus 9 क्या होता है, 3 raised to minus 2. तो यहाँ पे हमारा बॉक्स में आ जाएगा -2. ओके, नेक्स्ट है 3 raised to 4 and the whole raised to 5. दैट इज़ ये दोनों जो नंबर्स है 4 and 5 दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, दैट इज़ 3 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 5. इंडेक्स हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट बिकम्स 3 raised to 20. सो इधर हमारा ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा 20. फिर ये है 5 raised to -3. अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है इंडेक्स हमारा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा ये जो नेगेटिव इंडेक्स है वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव. ओके, अब आते हैं अगले. ओके, now 5 raised to 0, any number which have the index 0, the answer will be 1. Now 5 raised to 1,
If any number which have the index 1, the answer will be the same that number, है ना, वही नंबर रहेगा सेम. दूसरा है 5 into 7 the whole raised to 2. That means each of the number has the index 2. 5 raised to 2 into 7 raised to 2. Now 5 upon 7 the whole raised to 3 is equal to what? The whole raised to 3, यहाँ पे ये -3 नहीं दिया है, 3 ही है, तो इंडिविजुअली यहाँ पर हमारा 5 raised to 3 है और ये है हमारा 7 raised to 3. ठीक है. और अब जो है लास्ट में हमारा ये है 5 upon 7 raised to -3 है. इंडेक्स हमारा नेगेटिव है तो इसको मुझे पॉजिटिव करना है. देखो पॉजिटिव दिया हुआ है ऑलरेडी इंडेक्स यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगी, 5 upon 7 को उल्टा लिख दूँगी, दैट इज़ 7 upon 5. मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरा इंडेक्स पॉजिटिव आ गया. ओके, नाउ यू कैन सी. अब ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार. मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रेशनल इंडाइसेस, ये टेक्स्ट बुक में भी है आपके पीछे, टेक्स्ट बुक में भी है आपके, यू कैन चेक देयर ऑल्सो, बट ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ. मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रेशनल इंडाइसेस, अगर आपका कोई भी नंबर है ABCD या 1 2 3 4 कोई भी नंबर है और उसमें आपका जो इंडाइस है, दो टाइप से इंडाइसेस लिखे जाते हैं, एक तो 1 upon n फॉर्म में और एक m upon n फॉर्म में. यहाँ पे 1 upon n फॉर्म में यानी जो हमारा इंडाइस रहता है वो फ्रैक्शन में रहता है, वेरएज न्यूमरेटर उसमें हमेशा 1 रहेगा एंड जो डिनोमिनेटर है हमेशा एक नंबर रहेगा. इस तरीके से यू कैन सी ओवर हियर. ओके, नाउ नोट, अगर हमको स्क्वायर दिखाना है किसी नंबर का, इफ़ वी वांट टू शो द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, तो वी राइट रेज टू 2. हम इंडेक्स हमेशा 2 लिखते हैं. किसी भी नंबर का स्क्वायर बताना है, जैसे अगर मुझे 2 into 2 बताना है तो मैं 2 का स्क्वायर क्या लिखूँगी, 2 raised to 2. ठीक है. वही अगर मुझे 4 का स्क्वायर बताना है तो आई विल राइट 4 into 4 इज इक्वल टू 4 raised to 2. राइट. वही अगर किसी भी नंबर का 121 का स्क्वायर बताना है तो मुझे मैं 121 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज़ 121 raised to 2. तो इस तरीके से अगर मुझे स्क्वायर बताना है किसी भी नंबर का तो आई मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय 2, तो मेरा इंडेक्स होता है वहाँ पे 2. ठीक है. और अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट बताना है, नंबर का स्क्वायर रूट बताना है, तो मेरा जो इंडेक्स होगा दैट विल बी रिटन एज 1 upon 2. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे 25 का स्क्वायर रूट बताना है, तो 25 का स्क्वायर रूट के लिए या तो मैं ऐसा रूट का साइन डालूंगी, ठीक है, और आई विल राइट 25 raised to 1 upon 2. अगर मैंने रेस टू इंडेक्स में 1 upon 2 लिखा तो मतलब आई हैव टू, दिस इज माई स्क्वायर रूट ऑफ 25. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 25 raised to 1 upon 2. मतलब क्या है 25 raised to 1 upon 2. 1 upon 2 मतलब ये आपका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन ये दिया हुआ है. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कैन बी रिटन एज, स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके दिए हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए को लिखने के लिए. एक तो है ये, ठीक है, हमने रूट का साइन यानी उसे रेडिकल कहते हैं, हमने रेडिकल का साइन डाला है, उस पर 2 लिखा है, देखो हमने यहाँ पे, यू कैन सी राइट. तो स्क्वायर रूट ऑफ ए जिसमें हमने रूट में रेडिकल के साइन में 2 लिखा है, या फिर खाली वो रेडिकल का साइन डाला है, खाली रेडिकल का साइन भी डाला है, तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट ही आप निकाल रहे हो. और a raised to 1 upon 2, दैट इज़ a raised to half 1 upon 2. तो ऊपर हमेशा 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, और नीचे जो है आपका n कोई भी नंबर हो सकता है, तो n जो है वो रूट है, तो जो डिनोमिनेटर है 1 upon पावर में वो दैट इज कॉल्ड एज द रूट. सिमिलरली क्यूब ऑफ ए, अभी ये तो हमने देखा स्क्वायर रूट कैसा लिखा गया है, अगर हमें क्यूब रूट भी लिखना है ए का तो भी हम किस तरीके से लिखेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ ए इज रिटन एज, यू कैन सी द 3 टाइप्स. सबसे पहला एक ये है क्यूब रूट, हमने रेडिकल के साइन में क्यूब का नंबर डाल दिया है 3, और हमने a raised to 1 upon 3 लिखा है ना, a raised to 1 upon 3, तो यानी 3 जो है ये रूट है 1 upon 3, पावर इंडेक्स जो है ये 3rd रूट ऑफ a.
वैसे ही फिफ्थ रूट ऑफ 243 को लिखने के लिए हमने क्या किया है, रूट के साइन में 5 डाल दिया है। फिफ्थ रूट ना, फिफ्थ रूट बताना है तो रूट के साइन में हमें वो नंबर लिखना पड़ेगा। सिर्फ स्क्वायर होता है तो हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिर्फ स्क्वायर होता है तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्क्वायर के अलावा और भी कोई नंबर दूसरा होता है, जैसे क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, XYZ कुछ भी होने दो, सब हमें नंबर वहाँ पे रूट के साइन में लिखना पड़ेगा। या फिर 243 रेज टू 1/5। 1/5 मतलब ये जो 5 लिखा है ये फिफ्थ रूट, ओके। नाउ 128 रेज टू 1/7, यहाँ पे नंबर दिया है 128 रेज टू 1/7, तो ये आप देख सकते हो रेज टू 1/7, तो ये जो है मतलब सेवेंथ रूट अपॉन 7 जो दिया है इंडेक्स में, दैट मीन्स द सेवेंथ रूट ऑफ 128, ठीक है, दिस इज सेवेंथ रूट ऑफ 128। वैसे ही आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है 900 रेज टू 1/12, 1/12 मीन्स दिस इज 12th रूट ऑफ 900, ओके। उसी तरीके से ये चीज़ जो आप नोट कीजिए, एक दूसरा एक है, इफ़ 10 रेज टू 1/5 इज इक्वल टू x, यानी 10 रेज टू 1/5 इज इक्वल टू x, देन x रेज टू 5 विल बी इक्वल टू 10, देन x रेज टू 5 विल बी इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको समझ के, तो ये मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार वापस से, इफ़ 10 रेज टू 1/5 इज इक्वल टू x, देन x रेज टू 5 विल गिव यू 10, राइट। तो ये हमारा रूल है एक्चुअली, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर हमको फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम या ट्रू और फॉल्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम बता सकें, ओके। अब हमारा आ गया है प्रैक्टिस सेट 3.1, तो इसमें हम डायरेक्टली फटाफट आंसर्स करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में हमें नंबर लिखने हैं, जो अभी हम ऊपर कर रहे थे रिसेंटली, वही हमें करना है यहाँ पे। तो अब हम शुरू करते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13 मीन्स ये 13 रेज टू 1/5। सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सिक्स्थ रूट ऑफ 9 मीन्स 9 रेज टू 1/6। स्क्वायर रूट ऑफ 256 means 256 raised to 1/2. Square root means 1/2. Cube root of 17 means 17 raised to 1/3. ये मैं वापस से कर लेती हूँ, 17 का means 17 raised to 1/3. Eighth root of 100 means 100 raised to 1/8. सेवेंथ रूट ऑफ 30 मीन्स 30 रेज टू 1/7। तो जो भी हमारा रूट रहता है वो हम 1/, में नंबर ले लेते हैं, ओके। तो अब हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी ऊपर हमने जो किया उसका हमें ऑपोजिट यहाँ पे करना है। तो अब हमें नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसको रिटन फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a। तो ये देखो 81 रेज टू 1/4 है, तो ये तुम्हारा हो गया 4 है, तो फोर्थ रूट। तो यू कैन राइट FOURTH, फोर्थ रूट ऑफ 81, ओके। नेक्स्ट दिस इज 49 रेज टू 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर ही हो गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ओके। नेक्स्ट इज 15 और 15 रेज टू 1/5, तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूट ऑफ 15, राइट। 1/5 है ना, तो फिफ्थ रूट। अभी ये है नेक्स्ट 512 रेज टू 1/9, दैट इज दिस इज 9th root of 512. This will be 9th root of 512. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे दूसरे अरे और सम्स बाकी है हमारे, तो लेट्स डू देम। तो 100 रेज टू 1/19,
तो 100⁻1/19 के लिए 19 हमारा रूट है, तो 19th रूट ऑफ 100. ओके, देन इट इज 6⁻1/7, तो ये हो गया हमारा 7th रूट ऑफ 6. दैट सिंपल इट इज. अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अभी जो हमने पढ़ा था दैट वाज ओनली रूट, राइट, 1/n फॉर्म में था. अब ये जो हम करने वाले हैं वो हमारा है अब जो है हमारा m/n फॉर्म. सो द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रेशनल फॉर्म m/n. तो अब देखिए किस तरीके से, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है ना. अब हमें पता है 8² इज इक्वल टू 64, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है. वी नो दैट 8² इज इक्वल टू 64. अभी क्यूब रूट अगर हमें निकालना है 64 का, तो हम क्या करेंगे? तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 64⁻1/3. हमने ये 1/3 डाला है, ठीक है. अभी 64 क्या है? 64 इज 8², तो 8²⁻1/3. तो अगर आप 8² ब्रैकेट्स में ⁻1/3 करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/3 हो जाएगा, तो ये 8⁻2/3 हो जाएगा, राइट. तो इसका जो आंसर है वो हमारा आ रहा है 4, ठीक है. 64 का क्यूब रूट हमें पता है 4 है. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4. तो हमने क्या देखा है, आप देख सकते हो, ये क्यूब रूट ऑफ है ना 1/3 यानी क्या हो गया? क्यूब रूट. और 8 का 8⁻2 यानी स्क्वायर ऑफ 8. तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4. नेक्स्ट, सिमिलरली वी राइट क्यूब रूट ऑफ 8 इज 8⁻1/3. अभी हमने ऊपर सम्स किए, क्यूब रूट ऑफ कोई नंबर दिया है तो वो नंबर 1/3 इज इक्वल टू 2. क्यूब रूट अपने को पता है 8 का 3 होता है. स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 यानी अभी पहले हम लिखेंगे क्यूब रूट और फिर उसके बाद में लिखेंगे स्क्वायर. तो 8⁻1/3 ब्रैकेट्स में स्क्वायर, तो इसको भी करेंगे तो ये 1/3 × 2 हो जाएगा, दैट विल बी 2/3, 8⁻2/3. तो 8⁻1/3 ये आप देख सकते हो इज इक्वल टू 2⁻2 और 2⁻2 मतलब 4. 2⁻2 यानी 4. तो 1 और 2 में से अगर हम निकालते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8. ये दो चीज़ें आप देख सकते हो. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8. यानी ये दो चीज़ें कैसी थी हमारी, मैं आपको बता देती हूँ. ये जो लिखा है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 वो ये रहा, ठीक है. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर 8 मतलब ये रहा और इसका क्यूब रूट 1/3, ठीक है. और दूसरा है स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8. तो क्यूब रूट ऑफ 8 तो तुम्हारा 1/3 है और इसका स्क्वायर. इन दोनों का आंसर हमारा सेम आया था. तो यूजिंग दीज इंडाइसेस, तो ये रहे हमारे दोनों. 8² क्यूब रूट ऑफ 8² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ square of cube root of 8. So the rules for rational indices are the same as those for integral indices. तो जो हमारे नॉर्मल इंडाइसेस के हमने जो रूल्स अभी देखे थे, इंटीग्रल इंडाइसेस के लिए भी हम सेम यही रूल्स अप्लाई करने वाले हैं. तो यूजिंग द रूल a⁻m द होल रेज टू n इज इक्वल टू a⁻mn, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक रूल था ऑलरेडी. ब्रैकेट अगर आ जाता है और दो इंडाइसेस के बीच में ब्रैकेट आता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द इंडाइसेस. तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों भी जगह पे हमने इंडाइसेस को मल्टीप्लाई किया है, चाहे वो 2 × 1/3 हो और 1/3 × 2 हो, दोनों ही जगह पे आपका आएगा आंसर 2/3, ठीक है. दैट इज 8⁻2/3. अब वापस से इसके कुछ मीनिंग्स दिए गए. वी गेट 2 मीनिंग्स ऑफ द नंबर 8⁻2/3. पहला मीनिंग है हमारा
8^2/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, जो हमने ये किया है ना, क्यूब रूट 1/3 है, स्क्वायर है अंदर 8 का, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, तो स्क्वायर हमारा ये रहा और क्यूब रूट हमारा ये रहा अंदर, तो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, दूसरा है स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। हमें इतना देखना है बाहर कौन सा नंबर है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है वो हमें पहले लिखना है। ब्रैकेट के बाहर फर्स्ट वाले में है क्यूब, राइट, तो हमने लिखा है क्यूब रूट, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर है स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड वाले में स्क्वायर 2 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसीलिए हमने स्क्वायर ऑफ, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर है क्यूब रूट ऑफ 8 वो लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे ये सेम इसी तरीके से सम्स दिए गए हैं। 27^4/5, 27^4/5, यानी पहले हमने क्या किया है, 4 जो है वो अंदर लिख दिया है, पावर जो है अंदर लिखा है, और रूट जो है 5, 1/5 रूट बाहर लिखा है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट जो नंबर बाहर रहता है वो हमें शुरुआत करनी पड़ती है, राइट, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27, ठीक है, और इसका है 27^4/5, तो 27 अब हमने यहाँ पे क्या किया है, रूट अंदर लिखा है और पावर बाहर लिखा है, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। तो पहले हम पावर लिखेंगे, बाहर जो भी नंबर रहेगा पहले वो लिखेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, लाइक दिस। तो अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट।
अब हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 हम करने वाले हैं। इसमें है टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पे पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर, इस तरीके से हमें लिखना है, पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर। तो पहले हम पावर लिखेंगे और दूसरे लाइन में हम रूट लिखेंगे। तो पहला सम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 225 रेज़ टू 3/2, तो वो है, पहले अगर हमें पावर लिखना है तो 3 ऊपर है, पावर का 3, जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर वो पावर में होगा, और जो नीचे वाला नंबर होगा है डिनोमिनेटर वो रूट का होता है। तो हमें पावर का पहले लिखना है, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट होना चाहिए वो यहाँ पे, ओके, क्यूब ऑफ स्क्वायर के यहाँ पे रूट होना चाहिए, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। और दूसरा जो है हमें रूट का लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो पहले हम स्क्वायर रूट लिखेंगे और फिर क्यूब लिखेंगे। वहीं पर सेकंड सम हमारा दिया हुआ है 45 रेज़ टू 4/5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पावर लिखना है। तो पावर है 4, तो हमारा आंसर होना चाहिए 4th पावर ऑफ, रूट हमारा है 5th रूट ऑफ 45। और यहाँ जो है पहले रूट हम लिखेंगे, तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45, ओके, इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा जो है हमारा 81 जो है 81 रेज़ टू 6/7, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हमें पावर वाला लिखना है, तो पावर ऊपर है 6, तो हमारा हो जाएगा 6th पावर ऑफ, रूट हमारा 7 है, 7th रूट ऑफ 81। और यहाँ पर नेक्स्ट में हमें रूट पहले लिखना है, तो रूट हमारा है 7 ना, तो 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। तो पहले रूट लिखना था, बाद में पावर लिखना था, तो रूट है हमारा 7, पावर है 6, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। और अकॉर्डिंगली अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सम, नेक्स्ट सम के लिए, जो है 4th वाला 100 रेज़ टू 4/10। तो पहले हमें पावर वाला लिखना है, तो 4 वाला, और 10 नीचे रूट है, 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। और यहाँ पे हमें पहले रूट लिखना है, तो 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ठीक है। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट करेंगे 21 वाला करते हैं। 21 का है, पहले हमें पावर लिखना है, तो थर्ड, यहाँ पे 3 है पावर, तो थर्ड, THIRD, थर्ड पावर ऑफ, रूट हमारा 7 है, तो 7th रूट ऑफ 21। और यहाँ पे पहले हम रूट लिखेंगे, तो 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21, क्योंकि अगर हम क्यूब भी लिख सकते हैं, थर्ड पावर भी लिख सकते हैं, तो ये थर्ड पावर ज़्यादा बेटर रहेगा। 7th रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21। तो कुछ इस तरीके से हमें ये लिखना है हमारा एक्सरसाइज का। आई बिलीव ये सारे सम्स तो हो गए हैं। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडाइसेस, यानी अभी आपको ये नंबर्स दिए हैं सेंटेंस फॉर्म में, इसको आपको रेशनल इंडाइसेस में लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है, m/n फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं 121 हमने लिख दिया। अभी हमारे स्क्वायर रूट, ठीक है, और 5th पावर ऊपर रहेगा नंबर, रूट नीचे रहेगा,
तो फिफ्थ पावर है 5 ऊपर, स्क्वायर रूट नीचे 2, तो 121 रेज टू 5/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। तो सबसे पहले तो हम 324 लिख देते हैं, रूट है फोर्थ वन, ठीक है, तो नीचे 4 है, ऊपर क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। तो सबसे पहले हम 264 लिख देंगे। फिफ्थ रूट, रूट यानी नीचे आएगा नंबर और स्क्वायर यानी ऊपर आएगा, तो 2/5, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। तो बस हमें इतना याद रखना है कि पावर किसे बोला है और रूट किसे बोला है। पावर है तो न्यूमरेटर में आएगा नंबर, और रूट अगर बोला है तो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा। तो ये फ्रैक्शन हमें लिखते समय, बिल्कुल जो इंडाइसिस है फ्रैक्शन लिखते समय हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 यानी 3 रेज टू 3/3, इस तरीके से। दैट मीन्स ये हो जाता है आपका 3 रेज टू 1। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 रेज टू 3/3 ही लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, ये तो सम हो चुका था अपना। अब ये जो दो हैं आपके, देखिए, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज फिलअप्स के लिए पूछ सकते हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर है हमारा 25, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है, रूट अगर हम निकालते हैं इसका 25, तो हमारे दो आंसर्स आएंगे इसका, +5 एंड -5। कोई भी स्क्वायर रूट होने दो, उसके दो रूट निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0। आप कभी भी 0 का स्क्वायर रूट निकालो तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0। अब हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो अब हम करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। सो व्हाट इज क्यूब? Cube means when a number is multiplied 3 times by itself, then it is said to be the cube. The product of that number is said to be the cube of that number. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 6 × 6 × 6, दैट मीन्स 6 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जो पावर हम लिखेंगे 6⁻3, इंडेक्स हमारा है 3, 6⁻3, एंड दैट इज इक्वल टू 216, यानी 6 का क्यूब जो है वो है 216। ओके, और उसी तरीके से अगर 216 की बात करते हैं तो 216 जो है क्यूब ऑफ 6 है, राइट। तो अगर हमको क्यूब रूट चाहिए 216 का, तो क्यूब रूट निकालने के लिए आंसर हमारा आएगा 6, यानी किस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है, तो वो होता है 6। तो क्यूब रूट मतलब हम किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक तरीके से हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। क्यूब यानी हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 17। क्यूब ऑफ 17 मीन्स 17 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, सो वी गेट द आंसर 4913। सिमिलरली नेक्स्ट हमको दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ -6। तो -6 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम साइन को छोड़ दें
और खाली पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 6 का क्यूब अभी हमने ऊपर किया 216, लेकिन क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए ये जो 6 का क्यूब है, -6 का क्यूब है, वो नेगेटिव में है, -216। अभी फाइंड द क्यूब ऑफ -2/5। अभी 2/5 है तो 2/5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -2/5 raised to 3 इज इक्वल टू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। तो हमने क्या किया है, पहले 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 8, एंड देन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 125। तो क्योंकि ये माइनस में नंबर था, -2/5 था, इसीलिए हमको आंसर में भी माइनस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2। अब अगर डेसिमल वाले नंबर आते हैं तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जब हमें क्यूब निकालना है तो हमें पता है क्यूब को हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें डेसिमल भूल जाओ और नंबर बचता है 12। अगर हम डेसिमल निकाल दें तो 12 होता है, तो 12 का क्यूब हम निकालेंगे, दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि आंसर आता है 1728, राइट, 1728। अभी देखो आप, ये जो 1.2 है, डेसिमल तीनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक में एक एक डेसिमल है, तो तीनों का डेसिमल ऐड करेंगे तो 3 डेसिमल्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 नंबर्स छोड़ के एक डेसिमल डाल देंगे, तो ये हमारा हो गया 1.728 आंसर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर है, हमको दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02। अभी क्यूब है 0.02, ठीक है। अभी 0.02, 0 के पहले नंबर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0 ओनली। तो खाली हमें 2 का क्यूब निकालना है। हमको पता है 2 का क्यूब इज 8, राइट। लेकिन डेसिमल के बाद में यहाँ कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्यूब में आपके 6 नंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक नंबर ऑलरेडी है हमारे पास में, तो हम उसके पहले उतने 0 डाल देंगे, एक डेसिमल और एक 0, तो दैट इज 0.000008। ये रहा हमारा आंसर। तो हमने क्या करना है, 2 का हमने क्यूब निकाल लिया है, लेकिन जितने भी नंबर्स है डेसिमल के बाद में, जितने भी नंबर्स है वो आंसर में डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद में आने चाहिए उतने। और अगर कोई नंबर नहीं है तो वी हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे जो है देखिए, एक्सरसाइज 1 जैसे ऊपर बोला है 17 का हमने क्यूब निकाला है, तो 17 एक पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए उसका नंबर भी, आंसर भी हमारा पॉजिटिव आया है 4913। ओके, बट सेकेंड और फोर्थ फिफ्थ में जब हमने देखा, सेकेंड एक्सरसाइज में माइनस था नंबर, नेगेटिव नंबर था, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आया, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ध्यान रखने के लिए कि अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं किसी का भी और डेसिमल है, तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी। डेसिमल, जितने भी डेसिमल हमारे क्वेश्चन में है उसका डबल डेसिमल हमारा, इसमें ट्रिपल डेसिमल हमारा आंसर में होना चाहिए, नॉट डबल, ट्रिपल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें क्यूब रूट निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। अभी 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 216 के फैक्टर्स निकालने हैं। वी विल रिमूव द फैक्टर्स। फैक्टर्स प्राइम फैक्टर मेथड होता है, हम उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर जो LCM मेथड में हम यूज़ करते हैं वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं 216 के, वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × लाइक 3 times 2 and 3 times 3। तो ईच ऑफ द फैक्टर्स 3 और 2 जो है 3 बार आ रहे हैं, अपीयर्स थ्राइस, तो हम इसको ग्रुप में कर देंगे, जैसे 3 × 2 3 × 2 3 × 2, राइट, दैट इज 3 × 2 द होल रेज़ टू क्यूब, और 3 × 2 हमारा क्या होता है, 6 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, दैट इज, ये देखो फ्रैक्शन में ले लिया है यहाँ पे, 216 का क्यूब रूट जो है दैट इज इक्वल टू 6।
सेम वे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ -1331, ये हमें पता होना चाहिए. क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये सब हमें 1 से लेकर 30 तक ये नंबर्स का तो बाय हार्ट होना चाहिए. ये नंबर्स अगर हो जाएंगे तो हमारे आंसर्स बहुत क्विकली हम सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज़ हमें बहुत टाइम लगता है कई बार फैक्टर्स निकालने के लिए. तो ये 1331 हमें पता है 11 का है. सो 11 इंटू 11 इंटू 11, बट क्योंकि 1331 नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही होगा. सो क्यूब रूट ऑफ -1331 इज -11. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.125. इस टाइप के कभी भी नंबर आते हैं तो याद रखो, ये आपको जो दिया है 0.125, हमने क्या किया है, डेसिमल के बाद वाला नंबर ले लिया है एंड अपॉन जो है उतने ही ज़ीरो, जितना नंबर है डेसिमल के बाद उतने ही ज़ीरो वाला नंबर हमने नीचे ले लिया है, दैट इज़ 1000. 125/1000, क्यूब रूट ऑफ 125/1000, ये रहा हमारा. ठीक है. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, जैसे क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, जैसे कि हमने करते हैं ना इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमारा a/b द होल रेज टू m, दैट मीन्स a/m रेज टू b/m. बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि ये पूरा क्यूब रूट है इसीलिए हमने इंडिविजुअली इनको ले लिया है. क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000. 125 का क्यूब रूट तो होता है 5 क्यूब और 1000 का क्यूब रूट है 10. ठीक है. तो 5/10 इज इक्वल टू 0.5 और a रेज टू m द होल रेज टू 1/m इज इक्वल टू a. तो m/m हो जाएगा ना अपना, m इंटू 1/m विल बी, है ना, m इंटू 1/m, तो m कट इज इक्वल टू 1. नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728. क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालने के लिए हमें फैक्टर्स इसके निकालने पड़ेंगे. तो 1728 को हमने फैक्टर्स निकाला है 8 इंटू 216 और 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 216 का हमें पता है 6 इंटू 6 इंटू 6. तो दैट इज़ 2 इंटू 6 का क्यूब होगा, दैट इज़ 12 का क्यूब. सो 1728 इज़ द क्यूब ऑफ 12. नाउ क्योंकि क्यूब रूट हमें निकालना है, क्यूब रूट नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, लेकिन क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव ही होगा आंसर इसका. अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 3.3. इसमें फर्स्ट सम जो है मैंने यहाँ पे किया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. पहला जो सम है वो है 8000. 8000 को मैंने क्या किया है, एलसीएम मेथड से इस तरीके से डिवाइड किया है सिंगल नंबर को. आप देख सकते हो सिंगल नंबर को 8000 को पहले मैंने 4 से डिवाइड किया तो आई गेट 2000. 2000 को वापस 4 से डिवाइड किया, आई गेट 500. 500 को वापस 4 से डिवाइड किया, आई गेट 125. नाउ 125 को 5 से डिवाइड किया, आई गेट 25. 25 को 5 से डिवाइड किया, आई गेट 5 एंड 5 को 5 से डिवाइड किया, आई गेट 1. तो ये मेरे लिस्ट है. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5. तो 4 इंटू 5 द होल क्यूब मेरा आ रहा है, तो 4 इंटू 5 दैट इज़ 20. तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज़ 20. इसको मैं और एक अलग तरीके से भी कर सकती हूँ. तो ये है क्यूब रूट ऑफ 8000. ये तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया था, जो एलसीएम मेथड जिस तरीके से मैं फैक्टर्स निकालती हूँ नॉर्मली. इसके अंदर हम और कर सकते हैं. हमको पता है 8000 इज़ एक्चुअली 8 इंटू 1000, राइट. 8000 इज 8 इंटू 1000. अभी 8 अपने को पता है 2 का है, राइट. तो 2 इंटू, और ये 10,000 जो है किसका है, वो 10 का है. तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20. ठीक है. अब हम करेंगे नेक्स्ट 729 का. तो 729 किसका क्यूब रूट है, उसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. अभी लास्ट का नंबर देखो 9 है, ठीक है. 9 हमें लगता है 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा आई बिलीव 729 होना चाहिए. तो यस, ये 729 होगा. 81 इंटू 9.
तो ये हमारा फैक्टर्स जो है पहले है 9 इंटू 81 में लूँगी, एंड 81 इज़ अगेन 9 इंटू 9, दैट इज़ 9 इंटू 9 इंटू 9। मैंने 81 को स्प्लिट किया 9 इंटू 9 में, ठीक है। अब ये सारे आ गए 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये मेरा हो गया है 9 क्यूब, ठीक है। दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट 343। अभी 343 मुझे पता है 7 का है, तो ये 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 49, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये मैंने 49 को स्प्लिट किया 7 इंटू 7 में, इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, माइनस 512। अभी 512 किसका है, पहले हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेगा 512 का। मुझे पता है वो 8 का है, ठीक है, बट मैं फैक्टर्स, अब मैं अलग तरीके से फैक्टर्स निकाल लेती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मुझे पता है ये होगा जो, क्योंकि ये नंबर माइनस है, ठीक है, माइनस है तो मैं अभी माइनस नहीं डाल रही हूँ, बट एंड में मैं माइनस डालूंगी। अभी मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 512 को हम ले लेते हैं 2 से। मैं शुरुआत 2 से करती हूँ, अगर हमें बड़ा नंबर नहीं पता है तो वी कैन स्टार्ट विथ मिनिमम नंबर, दैट इज़ 2 और 3, वॉट एवर वी कैन सी कि वो डिवाइड हो रहा है। तो 256 में जा रहा है। 512 इज़ 2 इंटू 256। अगेन मैं 256 को स्प्लिट करूँगी तो वो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 128। तो मैंने 256 को 2 इंटू 128 में स्प्लिट किया है। अब मैं वापस से 128 को स्प्लिट करूँगी, तो ये तो मेरा 2 इंटू 2 इंटू तो सेम रहेगा ही। अब खाली 128 को स्प्लिट करने के लिए 2 इंटू 64 हो गया, ठीक है। अब ये 64 तो मुझे पता है किसका है, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली 3 बार 4 इंटू 4 इंटू 4 ले लेती हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये मेरा 3 बार आ गया, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये मेरा है 2 इंटू 4 3 बार क्यूब, ठीक है। दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 8 क्यूब, ठीक है। तो जो मेरा है क्यूब रूट ऑफ 512 इज़ 8। तो ये मैं इधर कर देती हूँ आंसर, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। ओके, लेकिन ये हमारा नेगेटिव नंबर था, माइनस था, इसके लिए हमारा आंसर भी होएगा -8। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, हम भले नंबर्स पॉजिटिव लेके करें, लेकिन हमारा फाइनल आंसर जो है हमें साइन देखना है, बिना साइन देखे नहीं सॉल्व करना है। सो -2744। अभी 2744 लास्ट में 4 है, तो हमको पता है ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो लेट अस डिवाइड इट बाय 2, या फिर हम एट द मोस्ट देख सकते हैं, इसको हम 8 से भी डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। 8 8 64 होता है, राइट। तो लास्ट में 4 आता है, तो वी कैन ट्राई टू डिवाइड इट बाय 64 ऑल्सो। सो देखो 2744 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, और ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो मैंने क्या बोला था, हम पहले पॉजिटिव नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में आंसर में हम नेगेटिव डालेंगे। तो 2744 पहले हमारा हो जाएगा ये 8 इंटू 343। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 8 के टेबल में 343 है। अगेन 343 हमने ऑलरेडी ऊपर किया है, ये 7 का क्यूब है, तो दिस इज 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, इंटू 343 को मैंने डाल दिया 7 इंटू 7 इंटू 7। आप पूरा स्टेप वाइज लिखें, नहीं तो ऐसा भी चलेगा, आपको इस तरीके से भी चलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 ब्रैकेट्स में रेज टू क्यूब, दैट इज़ ये हो गया 14 क्यूब, यानी 2744 इज़ 14 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू 14। ओके, नाउ 32768। 32768 अगेन लास्ट में इसमें 8 है, तो अब हम देखते हैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं 2 से 2 4 4 2 8 होता है, 8 के टेबल में 8 से भी हम डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट्स सी 8 से डिवाइड करने के लिए, तो 32768।
जो प्रीवियस हमारा सम था उसमें जो 14 आंसर आया था दैट विल बी नेगेटिव, -14 होगा। मैंने शायद उधर नहीं लिखा है साइन, बट दैट विल बी -14। तो ये जो हमारा सम है 32768, तो ये हो जाएगा अपना 8 इंटू, इसको अगर मैं करती हूँ पूरी तरीके से 8 से डिवाइड, तो 32, 8 4 सा 32 होता है, फिर 0 आ जाएगा, एक 7 डिवाइड नहीं होता है क्योंकि, फिर आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि 8 72 हो जाएगा ना, 9 सा 8 9 सा 72, 4 बचता है, 4 8 6, 4096। अभी 4096 दैट इज़ 8 इंटू, वापस से 8 से मैं डिवाइड कर सकती हूँ, इंटू 512। अभी 512 मुझे पता है 8 का है, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 64, तो 64 को तो मैं 3 बार 4 से ले लूँगी, और ये 8 3 बार आ गया है, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये मेरे आंसर आए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ है मेरा 8 इंटू 4 द होल क्यूब में आंसर आया है, दैट इज़ 32 क्यूब। तो आंसर इज़ क्यूब रूट ऑफ 32768, क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू 32, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया है, और क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर था इसके लिए ये हमारा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, 3.3 का हम सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो इसके अंदर है सिंप्लीफाई, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी क्यूब रूट ऑफ 27/125, इसको हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है ये। तो क्यूब रूट ऑफ 27/125 हमें पता करना है, तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125, विच इज़ इक्वल टू 27 हमें पता है, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 125 का वी नो इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दैट मीन्स दिस इज 3⁻³ अपॉन 5⁻³ दैट इज आंसर। क्यूब रूट जो है आपका, क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू 3/5, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट सम हम करते हैं रूट क्यूब रूट ऑफ 16/54, क्यूब रूट ऑफ 16/54, तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल स्टेप है करने के लिए। अभी हमें पता है 16 तो किसी का भी क्यूब नहीं है, राइट, 16 इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो हम क्या करेंगे, 16 को, और 54 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ 16/54 हमने ले लिया है। अभी इसको हमें फैक्टर्स निकालना है, इसका हमें फैक्टर्स निकालना है। नाउ 16 इज़ व्हाट, 8 इंटू 2 हम ले सकते हैं, 16 इज़ 8 इंटू 2, एंड व्हाट इज़ 54, 54 को हम 27 इंटू 2 ले सकते हैं। अब आप देखो दोनों जगह पे 2 हैं तो वो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बचा 8/27, ठीक है। तो 8/27 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा है, 8/27 आया ना, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा है 2 और क्यूब रूट ऑफ 7 हमारा है 3,
ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सम, जो कि लास्ट सम है हमारा, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। बहुत सिंपल सम है, अगर हमें क्यूब रूट ऑलरेडी दे दिया है, और इस टाइप का सम डेफिनेटली एक क्वेश्चन में आता ही है। इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू वॉट। बहुत ही सिंपल है। लास्ट के जो हमारे 3 नंबर हैं वो है 729, ठीक है। तो उसका तो हमारा क्यूब रूट 9 है, हमें पता है 729 का 9 है। अब ये जो 3 0 है, 3 0 की जगह पे हमको 1 0 और डाल देना है ना। क्यूब निकालना है, मतलब हर 3 नंबर का एक नंबर बाहर निकलेगा रूट के। तो 1 0 हमने 729 का 9 निकला, और ये 3 0 का हमने 1 0 निकाल दिया, एक डेसिमल और एक 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.09। दैट्स इट। या फिर इसको हम और अलग तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। क्यूब रूट तो ये तो लिखा हुआ है बिल्कुल, ये लिखने के बाद में पहले हम लिखेंगे 729 अपॉन रूट ले लेंगे, जितना भी डेसिमल है 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ में उतने 0 डाल देंगे, ठीक है। उतना 0 डालने के बाद में यानी कि ये हमारा हो गया क्यूब रूट जो है, ये हमारा हो गया 9 क्यूब अपॉन ये हमारा हो गया 100 क्यूब, ठीक है, विच इज़ अगेन 9/100। 9/100 मीन्स इट इज़ 0.09। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरा ये मैथ्स का चैप्टर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट ख़त्म हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।